Let's see the questions. X Limited issued for, this is the question which is shared in your Google Classroom. X Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as under. On application rupees 4 per share and on allotment rupees 5 per share including premium and call rupees 3 per share. Okay, so that is your premium money is along with the allotment money. So हो गया 4 plus 5 is 9 and 10 11 12 rupees का शेयर का मनी हो गया ये पूरा. ठीक है. एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर. कितना का बुलाया था? 40 बुलाया था और 60 के लिए आ गया. इसका मतलब क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. ठीक है. अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स. इसका मतलब क्या हुआ? 48,000 शेयर होल्डर्स को अगर आपने 40,000 शेयर्स इश्यू किए, इसका मतलब 12,000 की एप्लीकेशन को वी हैव रिजेक्टेड. ठीक है. The remaining applications being refused, money overpaid on application was utilized towards sums due on allotment. ठीक है. Normally what we do. Now second paragraph, third paragraph says Shri Manoj, to whom 1,500 shares were allotted, failed to pay the allotment in call money, and Shri Hussain, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the call money. These shares were subsequently forfeited. ये दोनों ने ही जितना इन्होंने 1,500 शेयर्स के लिए को इन्होंने अप्लाई कितना किया वो हमको निकालना पड़ेगा लेटर ऑन. मिस्टर मनोज ने अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे 1,500 एंड एक और था मिस्टर हुसैन, उनको हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किया. ठीक है. तो इन दोनों ने ही डिफॉल्ट करा है. कहाँ डिफॉल्ट किया है? मिस्टर मनोज ने डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी दोनों पे नहीं किया और हुसैन ने कॉल मनी पे नहीं किया एंड दोनों शेयर्स को फॉरफिट कर लिया आफ्टर ऑल द कॉल्स वर मेड. All the forfeited shares were sold to Mr. Banerjee as fully paid at rupees 8 per share. तो दोनों की shares मिलाकर उन्होंने हम लोगों ने क्या कर दिया? इनको रीइश्यू कर दिया to someone at rupees 8 per share as fully paid. ठीक है. तो मतलब 2 rupees का लॉस हुआ, वो हम कहाँ से लेंगे? शेयर forfeiture से लेंगे. Show journal entries to record the above transaction and prepare balance sheet. This is why especially I picked up this question because I wanted to tell you balance sheet also. अभी तक कि मैंने आपको balance sheet नहीं सिखाया, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन it's worth doing it because ये आएगा तो अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. आईएससी वालों के लिए तो आएगा तो 12 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है. एनसीबीएससी का तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स ही है कि इतने मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. यहाँ पर हमको टेबल भी बनाना होगा और हमको यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनानी है. टेबल once you get hang on it, you can skip making the table, but अभी के लिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं, so I will prefer to make the table. उससे क्लैरिटी आ जाती है and chances of mistakes are lesser. ठीक है. चलिए, so let us start doing it on our whiteboard. If you have another device, if you're seeing your classes on your laptop, you can keep your mobile aside. From there you can see the question, or I'll keep coming back over here. सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेबल बना लेते हैं. एनालिसिस टेबल. Share applied, share allotted, application money received, application money transferred to capital, excess money adjusted towards allotment and refund. ठीक है. चलो, application applied मतलब allotted, application money received, then application money transferred to capital, excess adjusted on allotment and refund. ठीक है. These many columns are there. Now first of all we have 48,000 shares
and 12,000 shares. So 48 को how many shares we have allotted? 40,000 shares are being allotted. ठीक है, और बाकी जो हमारा 12,000 था उसको हमने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब नील हो गया. What is your application money? 4 rupees per share is your application money. ठीक है, so 4 rupees per share से हो जाएगा 48,000 multiplied by 4 per share is 1,92,000 and 12,000 into 4 is 48,000. यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 2,40,000. Out of which how much will be transferred to share capital? Share capital में transfer होगा 40,000 multiplied by 4. ठीक है, 1,60,000 and from here nothing will be transferred since it is refunded. So ये हो गया 1,60,000. एक्सेस मनी यहाँ कितनी हो गई? 160 minus 192, 30,000, 32,000 की एक्सेस मनी हो गई है. ठीक है, and this excess money will be adjusted on here and here 48,000 and this 48,000 straight away will be refunded. So this total and this total also we will require. Leave some space below this. यहाँ पर आके हम एक और कैलकुलेशन करेंगे later on क्वेश्चन में. ठीक है, now we will make journal entries. Journal entries में we will have to start right from the beginning. First entry will be bank account debit to share application account. यहाँ पर ये वाला अमाउंट जो है इसको ले लो 2,40,000 रुपीज. 2,40,000 rupees. Number 2, share application account debit 2,40,000 to बैंक. सबसे पहले तो जो रिफंड किया, रिफंड कितना अमाउंट किया ये देखो, ये वाला अमाउंट रिफंड किया 48,000 we have refunded, so that we will write 48,000 we will write over here. Then to share capital, share capital में how much have we taken? ये रहा 1,60,000 we have taken to share capital, so that we will write. Then some amount we have adjusted towards allotment, so share allotment also we will write. How much have we adjusted? 32,000 we have adjusted. Okay, so this is our second entry जहां पर हमने रिफंड के बारे में भी लिख दिया और जो हमने आगे एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे वो भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया. ठीक है, नाउ गोइंग टू द थर्ड एंट्री जहां पर अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है. अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, 2 रुपीज का प्रीमियम है. अवर अलॉटमेंट मनी is ₹5 per share जहां पर 2 रुपए का प्रीमियम है and 3 rupees is going to share capital. So share allotment account debit. थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे बिकॉज बड़े बड़े क्वेश्चन है आज के. जो सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए दे ऑल आर बिग क्वेश्चंस. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होएगा? हाउ मेनी शेयर्स वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 40,000 shares, right? 60 की एप्लीकेशन आई थी या 40,000 shares. 40,000 multiplied by 5 करेंगे, so 2 lakh rupees will come over here. Then 40,000 multiplied by 3 करेंगे, this will be 1,20,000 and 40,000 multiplied by 2 will be 80,000. Are we clear with this? Yes. Silence is equal to yes. चलो number 4. Number 4 में what we have to do? We have to do बैंक वाला एंट्री. ना यहीं पे आकर गड़बड़ हो गया. क्या हो गया? पहले एंट्री पास कर देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट, और जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ दैट ओनली आईएससी स्टूडेंट्स हैव टू राइट. सीबीएसई स्टूडेंट्स विल नॉट राइट दिस ब्लू इंक में जो लिखा हुआ है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओनली पासिंग द एंट्री, वी आर नॉट राइटिंग द अमाउंट ओवर हियर. अमाउंट लिखने के लिए वी विल हैव टू गो बैक एंड डू सम कैलकुलेशन. ठीक है. आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक का हो गया नोटिंग? कोई पीछे है क्या? यस मैम, डन. डन? सबका हो गया? यस मैम. चलो अब देखो क्वेश्चन पर वापस जाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. Shri Manoj, third paragraph I'm on. Shri Manoj, to whom 15 shares were allotted, failed to pay allotment and call money. ठीक है, बस यहीं पे रुक जाओ, आगे का बाद में पढ़ेंगे. श्री मनोज जिसको कि हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए थे. अब जरा देखो यहाँ पर, ये मेरा टेबल है, एनालिसिस टेबल. जिसने 48 के लिए अप्लाई किया था उसको कितना मिला? 40 मिला. तो ये बोल रहा है ये जो मनोज है ना, मनोज को 1500 शेयर्स मिले. इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि मनोज ने 1500 के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसने 1500 से ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, तब इसको 1500 मिले. अलॉटेड लिखा है वहां पे. तो सबसे पहला काम तो इसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है. द क्वेश्चन इज व्हाई अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालना है? पीछे लगे क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे ये पता करना है इसे अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन अरियर हुआ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पर्सन ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप इस कॉलम में देखेंगे ये 48,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए, इन सब लोगों ने, जिसमें से एक मिस्टर मनोज भी है, इन सब लोगों ने ज्यादा पैसा दे रखा है. 48,000 के हिसाब से इन्होंने मनी दिया, लेकिन इनको तो मिला 40,000 शेयर्स. तो इनकी कुछ एक्सेस में मनी थी. ये देखो ये रही, इसमें मिस्टर मनोज की मनी भी इंक्लूडेड है. तो जब हम बोलेंगे कि इन्होंने कॉल का मनी दिया नहीं, सॉरी अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट की पूरी मनी नहीं दी ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सम मनी दे हैव ऑलरेडी पेड. आर यू गेटिंग? सुनो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताती हूँ, हाइपोथेटिकल. मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक पर्सन है जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया. ठीक है, ये है इसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स. लेकिन मैंने उसको, कंपनी ने उसको 800 शेयर्स ही अलॉट किए. तो इस बंदे ने जब हमको एप्लीकेशन दी थी, लेट्स से एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपीज, इसने तो हमें 2000 रुपीज दिए थे, लेकिन हमने इसमें से 1600 ही ओनली कहाँ ट्रांसफर किए हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए हैं, और 400 हमारे पास एक्सेस मनी रखी हुई है इसकी. अभी जब ही अलॉटमेंट की बारी आती है, लेट्स से अलॉटमेंट मनी भी 2 रुपीज है, तो हम बोल रहे हैं 800 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1600 का डिफॉल्ट हो गया. ये बोलना सही बात नहीं है. क्यों 1600 का डिफॉल्ट हो गया? अरे ये 400 रुपए तो पहले से दे रखे हैं इसने, पहले तो हम ये 400 यहाँ से एडजस्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि डिफॉल्ट या कॉल्स इन अरियर्स इज 1200 ओनली. तो ये अमाउंट पता करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने अप्लाई किया था ये पता होना बहुत जरूरी है. ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? मैम अगेन. ओके फाइन. देखो धीरे धीरे बोल रही हूँ, फिर भी नहीं आएगा, लेकिन आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे. मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया? 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया. लेकिन क्योंकि कंपनी ने प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है, इस 1000 के एप्लीकेंट को 1000 शेयर्स नहीं मिले. कितने शेयर्स मिले? ओनली 800 शेयर्स इसको हम लोगों ने अलॉट किए. तो इसने हमें मनी कितने से देती थी? एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम. मेरे एग्जांपल में मैंने बोला कि 2 रुपीज वाज द एप्लीकेशन मनी. ठीक है, तो इसने कितना पैसा दिया? ही गेव अस 2000 रुपीज. ठीक है, लेकिन इस 2000 रुपीज में से हमने एप्लीकेशन के टाइम पे 1600 ही कहाँ ट्रांसफर किए? यहाँ शेयर कैपिटल में. और ये 400 रुपीज एक्सेस मनी है जो हमने रखी हुई, और हम क्या करने वाले? इसको कॉल जब होगा, जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, तब इस 400 को एडजस्ट करेंगे. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई,
अगेन आई टुक द एग्जांपल ऑफ 2 रुपीज ओनली ऑन अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी उसको देनी कितनी थी, 800 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसको 1600 देना था, बट वो नहीं दे पाया। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा 1600 रुपीज नहीं दे पाया तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि इस 1600 रुपीज में से एक 400 रुपीज उसने पहले से दे रखा है। तो ये जो अमाउंट पहले से दे रखा है, पहले उसको हम एडजस्ट करेंगे एंड फिर ही तो बोलेंगे ना कि इतना रुपए का डिफॉल्ट हो गया। पूरा 1600 का थोड़ी डिफॉल्ट हुआ है, पहले से जो मनी रखी हुई है उसको एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसी कोई बात ही नहीं होती, कोई डिफॉल्ट नहीं होता, वो अगर हमें पैसा दे रहा होता अलॉटमेंट पे तो भी तो हम यही करते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन व्हाट डू वी डू एट दैट टाइम? जो मनी पहले मिल चुकी है हम उसको माइनस करके लिखते हैं ना। लेट्स से एक इकलौता ही शेयर होल्डर था ये, तो अगर हम यहाँ पे लिखते 1600 इसकी पहले वाली में एंट्री में, तो यहाँ पर हम 1200 ही लिख रहे होते ना। क्यों? क्योंकि 400 हम एडजस्ट करते हैं यहाँ से कि 400 रुपीज इसने पहले से दे दिया, पहले ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज बीइंग ऑलरेडी क्रेडिटेड, सो वी विल नॉट क्रेडिटेड बाय दैट अमाउंट नाउ। समझा कि नहीं? Yes, ma'am. Got it. गॉट इट? सबको समझ में आया? चलो, Yes, आज ma'am. इतने कम बच्चे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओनली 3 ऑफ यू आर हियर, बाकी सब गायब हैं। चलिए, अब क्या करना है मेरे को? सबसे पहले, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल में तो मालूम था कि इसने कितना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम ही नहीं है कि मिस्टर मनोज ने हाउ मेनी शेयर्स उसने अप्लाई किया। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर मनोज निकालना है। तो बहुत ईजी है, यूनिट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, यूनिट मेथड से कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे, यहाँ पर ही करके दिखाती हूँ, आपको भी इसी जगह पर करना है, यहीं पर। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे और यहीं एडजस्ट करके लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस हैं हमारे। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कि 40,000 शेयर्स जिनको मिले हैं ना, उन लोगों ने अप्लाई किया था 48,000 शेयर्स के लिए। ये कहाँ से उठाए ये वाले फिगर? ये देखो, यहाँ से उठाए। ठीक है, तो जिसने यूनिटरी मेथड, तो जिसको 1500 शेयर्स मिले, उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 into 1500। अब हमेशा ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली इसने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अरे बचपन में क्या था ना, एक पेंसिल 10 रुपए की आती है तो 10 पेंसिल कितने की आएंगे, वही यूनिटरी मेथड आपने लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500 आया। इसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। Are we all clear with this or you want me to tell it once again? मैम मल्टीप्लाई किससे किया? मल्टीप्लाई 1500 से किया। देखो ये 4800, देखो मैंने क्या बोला कि 40,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मिला 48, तो 1500 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको कितना, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? तो 48,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, यूनिटरी मेथड लगा दिया तो हमारा आंसर आया 1800। ओके मैम, क्लियर। ठीक है, अब हम आगे का टेबल आसानी से फिल कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम पहले कर रहे थे वैसे ही इस पर्सन का करके देखते हैं, तो हमको इसको कॉल सिनेरियोस की एंट्री करना इजी हो जाएगा। इसने इसका मतलब दिया कितना था? 1800 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसने दिया था हमको 7200 रुपीज। कैसे आया ये? मल्टीप्लाइड बाय 4 किया हमने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को, जिसमें से 1500 multiplied by 4, only 6,000 rupees we could take to the share capital account. तो बाकी का जो 1200 rupees है वो है excess, and this 1200 rupees has to be adjusted along with the allotment money. Are you getting? Yes ma'am. Note it down अच्छे से समझ के। अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ for your understanding you have to make some notes here, you can make. चलो, let's go back to the entry now. Entry में जाके what we have to do? We have to write call scenarios कितना हो गया। call scenarios कितना हो गया वो कैसे पता चलेगा? अभी मेरे पास कितना मनी आना चाहिए था actually I should have got, ये देखो ब्लू से ही बताती हूँ how much I should have got। मेरे पास पहले से जो अमाउंट आ चुका है, अभी आना चाहिए था मुझे, I should have got 2 lakh rupees minus
32,000. ठीक है, this much I should have got, but how much I will get? यहाँ पे मुझे 1,68,000 लिख देना चाहिए था. सीबीएसई वाले बच्चे मत लिखना अभी. 1,68,000 लिख देना चाहिए था, लेकिन कॉल्स इन अरियर्स कितने का हो गया है? ये जो पर्सन है कौन? मिस्टर मनोज. मिस्टर मनोज के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? He has got 1500 शेयर. 1500 इसकी वर्किंग करके बतानी पड़ेगी. चलो पीछे चलते हैं, यहाँ पर वर्किंग कर देते हैं. ये तो सिर्फ कहानी थी. चलो, amount of calls in arrears on allotment. मनोज शेयर. तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी. This is for CBSE also. क्या ये आपको सबको नोट करना है. एप्लीकेशन मनी पेड बाय मनोज is 7,200. Transferred to share capital 6,000. This is excess. Then we'll write amount due on allotment is number of shares allotted to him, 1,500 multiplied by 5 rupees. 7,500 minus excess money, 1,200. So 6,300 is calls in arrears. ठीक है? Have you noted this? And have you 1 minute, ma'am. या आराम से नोट करो और समझ के नोट करो कि 6,300 is the amount which he has not paid or it has become calls in arrears at the time of allotment. Done, ma'am. Done? All have done? Yes, ma'am. चलो, going back. Here how will you write? रुकना अभी यहाँ पे नोट करने से पहले जैसा मैं बता रही हूँ सुन लो. सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ऐसा नहीं लिखेंगे. मैं आप लोग के लिए एक एंट्री नीचे ही पास कर दूंगी. यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,61,700. ठीक है, ये लिख रही हूँ मैं सीबीएसई. CBSE students will pass this entry. Bank account debit to share allotment 1,61,700. चलिए note this down, then we'll go to next entry. So that amount is 2 lakh minus 32,000 minus 6 lakh 6,300. 6 lakh नहीं, only 6,300. Yes, ma'am. 2 lakh minus 30,000 minus 6,300. Minus 12. हाँ 6,300 minus 1,200. 1,200.
Wait, I got what you're trying to say. कि कैसे आया ये 1,61,700? This is what you're asking? Yes, ma'am. Yeah, so 2 लाख में से पहले तो 32,000 ये हो गया, माइनस कर देना उसको, minus 6,300. Yeah, 6,300 will be deducted from here. And 1,200 is already there in this 32,000 rupees. So वो 1,200 का आपको अलग से कुछ नहीं करना है. If you want, you can write over here, though it is understood by the working note what we have done behind. Okay, ma'am. Yeah, chalo. Let us go to the next entry. Shall I go to the next page now for the next entry? Yes, ma'am. Yeah. So before going to the next entry, let us read the question once again. Now we had left the question here, जहाँ पर fail to pay allotment and call money था. ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं अब क्या था. Shri Hussain, third paragraph, second line I am reading. Shri Hussain, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the call money. अब श्री हुसैन के साथ भी यही हो गया कि इन्होंने कॉल मनी नहीं लिया, लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट मनी दे दिया था. और मनोज ने क्या किया, मनोज ने तो अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं था एंड कॉल भी नहीं दिया. तो अब दो डिफॉल्टी हो गए. अलॉटमेंट में एक ही डिफॉल्टी था, मनोज. और जैसे ही हम कॉल मनी पे आएंगे, कॉल मनी ड्यू की एंट्री तो सबकी सेम ही होगी, लेकिन जब हम मनी वाली रिसीविंग वाली एंट्री करेंगे, मतलब बैंक वाली एंट्री पास करेंगे, तो वहां पे दो डिफॉल्टी हो गए. दो डिफॉल्टी कौन हो गए, एक तो हुसैन हो गया और एक मनोज तो था ही पहले से. ठीक है, इसके बाद इन्होंने शेयर्स फोरफीट कर लिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो वाली एंट्री पास कर देते हैं. ड्यू वाली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ड्यू वाली एंट्री को हम पहले पास कर देते हैं, फिर देखते हैं इनका कैलकुलेशन कैसे होगा. अब काम आसान है, अब वो नहीं निकाल के देखना है कितने नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड थे, क्यों बताती हूँ आगे. ठीक है, पहले एंट्री करते हैं. कौन सी नंबर एंट्री थी ये, we had done past entries till number 4, है ना. So this is Yes, ma'am. Yes. fifth entry. अब एंट्री होगी शेयर. एक ही कॉल है क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. And कितने number of shares, वही 40,000. And what is the amount of call? 3 rupees. तो 1,20,000 से ड्यू हो गई. ठीक है, अब जरा देखो ये यहाँ पे क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अरे रुको एक मिनट, कॉल सिनेरियोस भी है यहाँ पे. Our CBSE students will pass ठीक है. एंट्री सिर्फ पास कर लिया, मैथ्स करते हैं अभी हम लोग. देखो अब यहाँ पे हमें यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए थे. क्यों, रीजन देखो, इधर जाओ टेबल में, इस टेबल में देखें अगर ध्यान से हम, तो क्या हो रहा है, जितनी भी एक्सेस मनी मिली थी, दिस वाज ऑल टुगेदर एक्सेस मनी. इसके अंदर हुसैन भी है, इसके अंदर मनोज भी है. जितनी भी एक्सेस मनी थी वो सारी की सारी मनी तो एग्जॉस्ट हो चुकी है. कहाँ एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहीं पर एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो आगे जब हम कॉल का काम करेंगे तो कॉल में क्या जरूरत है पता करने की कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुसैन ने अप्लाई किया था. बिकॉज दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, जो भी रहा होगा उसका एक्सेस वो कहाँ एडजस्ट हो चुका है, अलॉटमेंट पे. और अलॉटमेंट तो हुसैन ने दे दिया था, अलॉटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है. हमने मनोज का इसीलिए करके देखा था क्योंकि अलॉटमेंट पे जरूरत पड़ती है, अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट होता है.
कॉल में थोड़ी ना एडजस्टमेंट हो रहा है, कॉल तक आते आते तो सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर हमको वो बैक कैलकुलेशन करने की और ये यूनिटरी मेथड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे हम उठाएंगे इनके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड सॉरी अलॉटेड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो कॉल मनी ड्यू है, और वो बन जाएगा हमारा कॉल सिनेरियोस। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? हाँ मैम। आई है, चलो। तो हम लोग यहाँ पहले मैं सीबीएसई आईएससी की एंट्री कर रही हूँ, फिर सीबीएसई की करूंगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना जाएगा? 1,20,000 रुपीज। यहाँ पर क्या होगा? कॉल्स एंड अरियर्स में, कॉल्स एंड अरियर्स में ना दोनों के शेयर्स जुड़ जाएंगे। कौन दोनों के शेयर्स? मनोज के एंड हुसैन के। मनोज के थे 1500 एंड हुसैन के थे 2000। इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। हाउ मच इज द ड्यू अमाउंट? 3 रुपीज इज द ड्यू अमाउंट। ठीक है, सो 3,500 into 300, 3 rupees, sorry, 10,500 has become your calls in arrears. ठीक है, this much money did not come. So 1,20,000 minus 10,500, this is 109500 will come over here, and CBSE वाले बच्चे डायरेक्टली ये वाला अमाउंट लिखेंगे 109500. Are we clear with this? बस यहाँ तक की तो एंट्रीज हो गई। अब क्या करना है? फोरफीट करना है। बोला इन दोनों के शेयर्स को उन लोगों ने क्या कर लिया? पूरे शेयर्स फोरफीट कर लिया और सारे के सारे शेयर्स उठा करके एक कोई मिस्टर चैटर्जी को इश्यू कर दिए, बैनर्जी को इश्यू कर दिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी फोरफीचर की एंट्री होगी। अब देखो मैं आपको दोनों एंट्रीज करके बता रही हूँ, दोनों की अलग अलग एंट्रीज करके बता रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन पास अ कंबाइंड एंट्री आल्सो, बट लिख लेना दोनों। फाइन, बाद में तुम एग्जाम में क्या करोगे दैट इज अप टू यू, कितना आप प्रैक्टिस करते हो, कितना अच्छा कर लेते हो कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं अभी दोनों तरीके की एंट्री पास करके बता रही हूँ। दोनों तरीके का मतलब क्या? एक बार मनोज के शेयर्स फोरफीट हुए, उसकी अलग एंट्री पास कर रही हूँ। एक बार हुसैन के शेयर्स फोरफीट हुए, उसकी अलग एंट्री पास कर रही हूँ। और एक दोनों की कंबाइंड एंट्री बता रही हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों के फोरफीचर्स के अमाउंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो जिस बच्चे को बहुत मुश्किल होती है वो अलग अलग भी कर लेता है, और कुछ लोग जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिनको समझ में आने लगता है, वो एक साथ भी कर लेते हैं। तो दैट इज योर विश कैसे करना है, मैं आपको दोनों करके बता रही हूँ। तो मैं पहले मनोज की एंट्री पास कर रही हूँ फोरफीचर की। फोरफीचर की एंट्री तो सेम ही रहने वाली है। क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड पहली बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ऑल्सो डेबिट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे फोरफीचर विद इश्यू एट पार किए थे, फोरफीचर एट द टाइम ऑफ प्री इश्यू एट प्रीमियम हमने पहला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो अभी तक वो किया ही नहीं था हमने। तो यहाँ पर क्योंकि इस मनोज ने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, और अलॉटमेंट मनी के ऊपर प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम भी नहीं दिया इसका मतलब, और जो भी पैसा नहीं दिया वो यहाँ आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको भी हम पहली बार डेबिट कर रहे हैं। टू कॉल सिनेरियोस, सीबीएसई बच्चे वाले कॉल सिनेरियोस नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? लिख देती हूँ, ब्लू कलर के पेन से लिख देती हूँ। सीबीएसई वाले स्टूडेंट लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर एफएनएल। टू शेयर फोरफीचर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मनोज की उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है एंड हुसैन का कंपैरेटिवली इजी है। अब देखो, जब मैं शेयर फोरफीचर लिखूंगी तो ये मत करना कि 1500 शेयर्स थे इसके पास, 1500 मल्टीप्लाइड बाय इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था, 4 कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलो 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 टेबल में चलो और देखो क्या लिखा है टेबल में। हाउ मेनी शेयर्स ही अप्लाइड फॉर? ही अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स। तो इसका मतलब इसने मनी कितना दिया है? 7200। शेयर फोरफीचर के सामने क्या अमाउंट आता है? जो भी पैसा शेयर होल्डर ने दे रखा है हमको वो आता है। तो कितना दे रखा है? 7200 दे रखा है। ये 7200 वहां हमको लिखना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है,
तो ये मिस्टेक प्रोन एरिया है, इसको जरा याद रखना कि इसको आपको 7200 लिखना है। और ये 7200 कैसे आया, चलो इसके सामने भी लिख देते हैं। बिकॉज ही हैड अप्लाइड फॉर कितना शेयर, ही हैड अप्लाइड फॉर 1800 शेयर, तो 1800 मल्टीप्लाइड 4 करके ये आया अमाउंट। ठीक है, फिर इसका कॉल सिनेरियोस क्या हो गया, कॉल सिनेरियोस कुछ नहीं, जो दोनों बार उसने कॉल सिनेरियोस किया उसको ऐड कर दो। कितना ऐड किया, ये देखो यहाँ पर ये रहा, अरे ज्यादा ही पीछे चले गए। एक तो ये रहा कॉल सिनेरियो 6300, ये वाला 6300, और यहाँ पर ये 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 6300 प्लस लास्ट कॉल पे इसने जो किया था 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 4500, और आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 6300 and 4500। यहाँ कितना अमाउंट जाएगा, ये तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने उसको अलॉट किए गए थे उतना ही, 3000 rupees, and each share was of 10 rupees। 15,000 plus 3,000 is 18,000, और नीचे का भी टोटल लगा के देख लो एंट्री टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये ब्लू वाला नहीं लिखना है ऐसी स्टूडेंट्स को। अब चलते हैं हम लोग एंट्री पास करते हैं किसके लिए, हुसैन के लिए। हुसैन की एंट्री पास करना है। शैल आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. चलिए हुसैन के लिए एंट्री पास करेंगे। इसका काम बहुत आसान है, इसने कुछ गड़बड़ी नहीं करी थी अलॉटमेंट के टाइम में, तो इसका काम जो है काफी आसान है। इसने क्या किया था, इसने सिर्फ फाइनल कॉल की नहीं दी थी, तो इस केस में शेयर कैपिटल ही आएगा ऊपर, यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर account to calls in arrears, and आप बच्चे लिखेंगे सीबीएसई वाले to share first and final call account। ठीक है, अमाउंट्स लिख देते हैं। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हाउ मेनी शेयर्स ही अप्लाइड, ही वाज अलॉटेड फॉर 2000, 2000 into 10 is 20,000। शेयर फॉरफीचर में हाउ मच ही हैज पेड, ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी दिया था इसने, है ना, एंड अलॉटमेंट मनी भी दिया था इसने। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस कितना था 3, 8 रुपीज। देन कॉल सिनेरियोस कितना था इसका, लास्ट कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की थी। एक मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, प्लीज वेट करिए।
ये जो अमाउंट है ना, इट विल नॉट बी 8 रुपीज। क्यों 8 रुपीज नहीं होएगा? यहाँ से हमको प्रीमियम का अमाउंट अलग करना पड़ता है। द रूल इज दैट जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है। दैट अमाउंट डजंट कम हियर इन शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 3 + 3 6 रुपीज विल कम। अभी समझा दूंगी, एंट्री पूरी कर लो, ठीक है। 2000 into 6 12,000। ये एंट्री टैली नहीं कर रही है क्या? Ma'am, नहीं it's नहीं 7. कर Ma'am, 4 3. प्रीमियम, अरे प्रीमियम वाज 2 रुपीज ना, एंड ओ 4 + 3, सॉरी 2 यहाँ 7. पे 4 रुपीज था। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी वाज 4 4 + 3 7। 14,000। ठीक है, एक बार सुन लो ये वाली जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो, जो भी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का होता है, दैट इज ऑलरेडी गॉन इन अ सेपरेट अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना, जिसको कि आपने क्रेडिट कर रखा है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें हाथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई इफेक्ट डेबिट में तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप उसको क्रेडिट में भी नहीं लिखेंगे। एंड इट इज ट्रीटेड कि वो ऑलरेडी अलग जा चुका है, ठीक है, तो उसको कैपिटल, ये क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या, शेयर फॉरफीचर का ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, या फिर जो शेयर्स आपने इश्यू किए एट डिस्काउंट पे उस पे यूज होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है उसके हमने स्पेसिफिक यूजेस पढ़े हुए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 4-5 जगह पर ही यूज करना है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं करना है। इसीलिए उस अमाउंट को हम शेयर फॉरफीचर में कंबाइन करके नहीं लिखते हैं, उसको अलग से ही लिखा जाता है। अगर वो मिल चुका है तो, नहीं मिला है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डेबिट इट। मिल चुका है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के साथ कभी भी उसको क्लब नहीं किया जाता। ठीक है, अब हमने दोनों की अलग अलग एंट्रीज पास कर ली। मैं आपको दोनों की एक साथ एंट्री भी पास करके बता देती हूँ, अभी यहाँ पर लिख देती हूँ। सो कंबाइंड वाली एंट्री आईएससी के लिए है। कंबाइंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर, ये है मनोज प्लस हुसैन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल सिनेरियोस। शेयर कैपिटल में दोनों की कंबाइंड कैपिटल बस ऐड करते जाना है दोनों को, ठीक है। दोनों का कंबाइंड कैपिटल चला जाएगा 35,000। यहाँ पर सिर्फ मनोज ही आएगा, बिकॉज इसने, दूसरे वाले ने, हुसैन ने तो दे दिया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट, तो उसको नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। दैट विल बी 3,000 रुपीज। दिस इज 16,800, ठीक है। 16,800 इज योर कॉल्स इन अरियर्स, एंड दिस इज 21,200, ठीक है। दोनों के अमाउंट को कंबाइंड करके लिखा है। हैव यू नोटेड? मैम लास्ट। लिखिए, फिर मैं सीबीएसई के लिए एंट्री लिखती हूँ। यस मैम नोटेड। नेक्स्ट इज सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर,
account to share allotment account to share first and final call. ठीक है, शेयर कैपिटल में तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये 35,000 एंड 3,000 सेम अमाउंट जाएगा, दोनों का मिला कर आ रहा है ये. शेयर फॉर फीचर ऑल्सो द सेम अमाउंट विल बी पास्ड ऑन 21,200. यहाँ पर आएगा 6,300. कैसे आया 6,300? ये देखो 6,300 he did not pay ना, ये रहा 6,300, this amount, this is coming, और 10,500 will come over here. ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करके देख लेना, ऐड करोगे तो यही अमाउंट आएंगे. अभी हम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो इसकी एंट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंबाइन एंट्री पे. We will move ahead for the reissue का एंट्री. Done? All of you have done? Yes, ma'am. चलो, now we'll do reissue का entry. Now what happened? All of these shares are issued to someone else. ठीक है, कितना 8 रुपीज पर शेयर थे. नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ एंट्री में 8 रुपीज पर शेयर पे. तो सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर रीइश्यू ऑफ द शेयर्स एंड शेयर फॉर फीचर, बिकॉज 8 रुपीज पे रीइश्यू किया मतलब 2 रुपीज का लॉस हो रहा है. शेयर फॉर फीचर अकाउंट will be debited and to share capital. So how many shares together? 1,500 Manoj ke and 2,000 iske. What is his name? So the share capital will be 1,500 plus 2,000. 3,500 की share capital होगी. So 35,000 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ साइड में हम लोग लिख भी देते हैं 3,500 into 10. ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 8. 8 रुपीज पे ये शेयर्स इश्यू किया ना, तो दिस इज 28,000 रुपीज. And the difference between these two, 7,000 rupees will come over here. Then share for feature से हम capital reserve में transfer करेंगे. ना कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? ये जो लास्ट में मैंने कंबाइन एंट्री करके बताई थी ना, आई एम टेकिंग यू बैक देयर. देखो ये रहा शेयर फॉर फीचर अकाउंट 21,200, दोनों का अमाउंट कंबाइंड वाला यहाँ पर है. उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 7,000 माइनस कर देंगे. तो 21,200 माइनस 7,000, 14,200 बचा. This will be transferred to ठीक है, clear with this? Note it down. Now the last part is left, that is balance sheet. The only challenge with issue of share capital के क्वेश्चन का कि थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली, बाद में इजी हो जाता है, फिर बाद में एंट्रीज पास हो जाती है फास्ट फास्ट वंस यू आर डन. क्योंकि इनिशियल जो एंट्रीज होती हैं, जब तक कि फॉर फीचर और कैपिटल रिजर्व नहीं आता तब तक की एंट्री तो बहुत फास्ट पास होती है. यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशंस करने में.
Have you all noted? Yes, ma'am. पक्का सबका हो गया? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल ओनली टू से. चलो बैलेंस शीट करते हैं. बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ही बनाना है, तो पूरी बैलेंस शीट जरूरत नहीं है. मैं अपना पेज हाफ में डिवाइड करें, आप लोग मेरे जैसे नहीं करेंगे. यू विल डू वन आफ्टर द अदर, मतलब कि इसके नीचे करना है. मैं यहाँ हाफ पार्ट में अपना बैलेंस शीट बना रही हूँ और दूसरे हाफ में मैं अपना नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगी. तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट करके सिर्फ रख देते हैं. बैलेंस शीट एज दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी, यू कैन राइट डाउन. Of X Limited, I think. As on, as at. जो ठीक है. तो पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी. हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट में आपको शेयर कैपिटल ही दिखाना होता है. इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें है शेयर कैपिटल. If you want to do little extra, you can do, otherwise not required. And reserves and surplus. ठीक है, इसके लिए नोट लगेगा, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2. इस लाइन को थोड़ा सा मुझे उधर करना पड़ेगा. चलो फिर कर देती हूँ तुम लोग ना ये एसेट वाला पार्ट. इसमें तो एक ही चीज आएगी, करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. ठीक है, ये है तुम्हारा नोट नंबर 3. चलो यहाँ पे कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स. सबसे पहले शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल तो दिया नहीं है हमको. So we'll leave it blank. Issued, subscribed, and fully paid. क्यों मैंने सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड नहीं लिखा? क्योंकि क्या हुआ, फॉरफिट हो गए, रीइश्यू हो गए दोबारा शेयर, तो कहाँ बचा? अगर मेरा क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता जहां पर शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए थे और रीइश्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, तो मुझे वो वाली क्लास बनानी पड़ती. फॉरफिटेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, या तो रीइश्यू भी हो गए, सो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग दैट, है ना. चलो, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स थे. तो 40,000 शेयर्स at the rate of ₹10 per share. बाहर आ जाएगा 4 lakh rupees. And this 4 lakh rupees will write over here. Then a reserves and surplus. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एक तो आपका कॉल्सन, सॉरी नॉट कॉल्सन, कैपिटल रिजर्व, जो आपने लास्ट एंट्री किया. देखो क्या किया आपने, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट ट्रांसफर किया ना कैपिटल रिजर्व में. ये देखो, ये रही एंट्री, ये 14,200. दिस विल राइट 14,200. और एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना बार उसको क्रेडिट किया उसको ऐड करना है. एक ही बार क्रेडिट किया, ये देखो ये रहा. $80,000, लेकिन इसको डेबिट भी कर दिया एक बार. कब डेबिट किया? ये रहा 3,000, इसको आपने डेबिट किया. ठीक है, तो ये डेबिट माइनस कर देंगे
और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 77,000। ठीक है, तो 77,000 प्लस 14,200 इज 91,200। और कैश एंड बैंक बैलेंस, जितना भी कैश एंड बैंक है उसको आप ऐड कर लीजिए। आई एम जस्ट राइटिंग हियर द फाइनल अमाउंट, यू कैन ऐड फ्रॉम देयर एंड सी। दैट विल कम 4,91,200। 4,91,200 एंड यहाँ का भी टोटल है 4,91,200। प्लीज कॉपी। Have you all done? Yes, ma'am. Yes, Done. ma'am. ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते तो बता दिया करो। सुबह जब से क्लास शुरू हुई बोल रही हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने की क्लासरूम में डाला हुआ है वहां से। यस, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। The Delhi Cloth Mills Limited invited applications for 10,000 shares of ₹100 each at a premium of 10 each payable as below. ठीक है, क्या है? 50 rupees application, 35 on allotment, 25 on call. Applications for 15,000 shares were received. Again over subscription हो गया है, यहाँ पे 5,000 है कि extra application आ रही है। Applications for 25,100 shares did not get any allotment and their money returned. ठीक है, allotment was made pro rata on the remaining applicants. Almost same जैसे previous question में किया था उसी टाइप का कुछ है यहाँ तक, तो आगे भी सेम ही है। Mr. A was allotted 400 shares. He failed to pay allotment due on amount due on allotment and call money. Again देखो, इसने allotment नहीं दिया तो हमको back calculation करना पड़ेगा। allotted number of shares दिया है, कितने number of shares इसने apply किए थे उसका हमें calculation करना पड़ेगा। The company forfeited his shares subsequently and reissued at ₹105 per share. Premium पे issue कर दिया, फायदा हो गया कंपनी को। Show journal entries in the books of company, also prepared balance sheet. ठीक है, चलो तो अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन बट इट इज वर्थ डूइंग इट बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। आप लोग मेरा वेट नहीं करोगे, आप अपना बनाना स्टार्ट कर दोगे और फिर मेरे साथ चेक करते रहोगे।
So the first column is applied, allotted, application money received. Just 1 minute. Yes, application money आप लोग ने पता नहीं कितना किया है. Application money received, transferred to capital. फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस, एडजस्टेड एंड रिफंडेड. ठीक है मैम, हम अगर ट्रांसफर कैपिटल नहीं लिखते, सॉरी बेटा, आई डिडंट गेट यू, कैन यू से इट अगेन? मैम इसमें अगर हमने ट्रांसफर कैपिटल नहीं लिख के एक ही एक्सेस और ट्रांसफर को कंपेयर करके भी लिखते हैं. ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इसको आप ले जाते हो एक्सेस और एडजस्ट, है ना. ये वाले कॉलम को यू आर टेकिंग इनटू दिस. अगर आप कोई भी कॉलम मिस कर दो तो वहां पे कैलकुलेशन कर लेना. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉलम मिस नहीं कर सकते. यू कैन मिस, बट ये पूरा जो टेबल बनाने का पर्पस ही यही है कि आगे हमको एंट्रीज के साथ कैलकुलेशन नहीं करना पड़े. तो दैट वे. ठीक है, रेस्ट इज योर विश. आई एम काइनिंग एक्सेस एंड एडजस्टेड वाली कॉलम. यू आर अच्छा ठीक है, चलेगा. दैट वे विल आल्सो डू. क्या नाम है क्वेश्चन का? आई एम बीन ट्राइंग टू फाइंड इट इन माय बुक. दिल्ली लिमिटेड कुछ था ना, दिल्ली क्लॉथ मिल्स. यस, दिल्ली क्लॉथ मिल्स. चलिए, सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड था 15,000 एंड उसमें से 12,500 वालों को हमने दिया 10,000 एंड 2,500 को कुछ भी नहीं दिया, नील कर दिया. ठीक है. What is the application money? 50 rupees is the application money. Where is my calculator? Here it is. 50 rupees is application money. So 12,500 into 50 is 6,25,000 and 10,000 into 50 is 5 lakh rupees. It will go over here. Then 2,500 into 50 is 1,25,000. Nothing is going over here. All is here only, excess money, and here also 1,25,000. Okay. Now this adjusted is obviously 1,25,000. Nothing is refunded, and here it is refunded. So this amount is 7,50,000. This amount is 5 lakh. This amount is 3 lakh, which is not required. We'll not do the total of this particular column. We'll do total here. And you will leave some space here. ठीक है, थोड़ा सा fast करना, because we have to do a lot of work in this question. Let us go to the next page to find the journal entries, to do the journal entries. ठीक है. So journal entries. फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. अब तो इतने क्वेश्चन हो गए, आपको मेरे से पास करना चाहिए. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितना अमाउंट आएगा ये देखो जो लिखा है इधर, 7,50,000. सो विल राइट डाउन 7,50,000. सेकेंड एंट्री में विल राइट share application account debit to share capital account to share allotment account to bank.
सारे अमाउंट जो है आप लोग कॉलम में से उठाएंगे और जो टेबल बनाया है वहां से उठाएंगे और लिख देंगे आप 7,50,000 इज योर एप्लीकेशन से ट्रांसफर जो होगा कैपिटल में इज 5 लाख एंड योर 1,25,000 ईच. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट. यहाँ पर प्रीमियम है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू share capital account and to securities premium reserve account. ठीक है. how many shares were there? 10,000 multiplied by what is the amount? 35 rupees. 3,50,000 जिसमें allotment sorry premium money is 10 rupees. so 10,000 into 10 rupees, that is 1 lakh rupees, and 10,000 into 25, this is 2,50,000 rupees. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? It's all very simple, so I'm not stopping. I'm going on passing the entries. Now going to the next page. Are we all done with this? This much is noted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज इधर ही पे इसने क्या करा है, मिस्टर ए इसने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी किया है. ठीक है. तो पहले हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, फिर कैलकुलेशंस करके देखेंगे कौन सा एंट्री नंबर है. दिस इज 4th एंट्री. सो एंट्री इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स. सीबीएसई वाले बच्चे कॉल्स इन अरियर्स नहीं लिखेंगे. टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है. मैं एक काम कर रही हूँ टू डू इट फास्ट. मैं इसके बाद जो एंट्री है ना फाइनल कॉल की उसको भी पास करके रख दे रही हूँ. ठीक है. फिर यहाँ पर वापस आके इसे कर लेंगे. सो यहाँ पर मुझे करना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, आप लोग भी मेरे साथ कर लेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. How many shares are there? 10,000 multiplied by 25. So ये हो गया 2,50,000 and 2,50,000. Capital account. Oh, sorry. Share But first. do we share capital account? Yeah. Share capital. Share capital. Share first and final कर लेंगे इसको. ठीक है. Share first and final कर. Now 6th entry will be bank account debit, calls in arrears account debit, to share FNF first and final call account. ठीक है. First and final call will be credited with 2,50,000 shares, but out of this 2,50,000 shares, one shareholder holding 400 shares did not pay 25 rupees. So he did not pay 10,000 here. This will be in calls in arrears and यहाँ पर आएगा 2,40,000. CBSE students will omit writing calls in arrears and दोनों जगह 240 आप लोग लिख लेंगे. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Now the same thing what हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में मनोज के लिए किया था. क्या किया था हमने? मनोज के लिए सबसे पहले हम टेबल में गए थे और हमने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाला था. सेम प्रैक्टिस वी हैव टू डू हियर आल्सो. सबसे पहले इसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? ही इज बीइंग अलॉटेड 400 शेयर्स. तो हमें ये निकालना है दिस मिस्टर ए है ना. क्या नाम है इसका? मिस्टर ए. मिस्टर ए का नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाल लेते हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यहाँ लिख देती हूँ मैं. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड
will be something like this. जिन लोगों ने 10,000, जिनको 10,000 allot किया, they had actually applied for 12,500 shares. So this Mr. A who was allotted 400 shares. How many shares he actually applied for? So 12,500 divided by 10,000 multiplied by 400 करेंगे तो इसके हमें number of shares applied मिल जाएंगे. ठीक है. So 12,500 divided by 10,000 into 4 किया. So we got to know that this person had applied for 500 shares. ठीक है. इसमें किसी को कोई दिक्कत? Ma'am. Now 500, which is his applied share, multiplied by 50, which was application money. 25,000 is going to come over here. जिसने इतना दिया था, जिसमें से हमने application पे कितना share capital में transfer कर दिया is 10,000. ठीक है. So is it that much? 50 rupees. No, sorry. 50 है यहाँ पर. So 400 multiplied by 50 is 20,000. 20,000 is being transferred to capital. 5,000 is excess money which is used over here. देख लो अच्छे से, नोट करते टाइम समझते भी जाओ. And then we will go to the calculation of calls in arrears. उसके लिए working note में लिखना पड़ेगा. हो गया नोटिंग? Yes. Girls, all of you have noted? Yes, ma'am. Done. So we are going to the working note, जहाँ पर हम calculation of calls and arrears करेंगे. Calculation of calls in arrears. So amount due on allotment. Amount due on allotment कितना होगा? He has 400 shares and allotment पे due money जो है, this is 35 rupees. ठीक है. So 400 multiplied by 35 किया, so this is coming 14,000. ठीक है. माइनस, मैंने ना पहले जो आपको वर्किंग नोट बताया था उसमें वही सारी बातें दोबारा से लिखी थी जो टेबल में लिखी है. यहाँ पे आई एम स्किपिंग दैट पार्ट. क्यों? क्योंकि टेबल में हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया है वो. तो यहाँ पर दोबारा लिखने का और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही हो अभी तो यहाँ भी लिख. देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे लिख के बताया था. आई जस्ट टेक यू टू दैट पेज फर्स्ट एंड शो यू कि वो कैलकुलेशन हमने कैसे किया था. ये देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो मनोज का था, ये सब कुछ तो हम लोगों ने वहां लिखा है टेबल में ऑलरेडी. So there is no point writing this again. But still, if you feel कि बाद में revision करते time मेरे को समझ में नहीं आएगा, so please do write. ठीक है. अभी मैं नहीं लिख रही हूँ because we have to write, make the balance sheet also of this. That's why I am just doing थोड़ा सा short करके लिख रही हूँ इसको. Clear? Are you all clear with this? You can do this in the same manner also. चलो, तो excess application money to be adjusted. How much was the excess application money to be adjusted? Let us see from the table. This is 5,000 rupees. 1,000. 5,000. 14 minus 5 कितना हो गया? 11,000 is calls in arrears. Clear? Have you noted? Ma'am, it will be 9,000. 5 है ना बेटा? Oh, sorry, मैं क्या कर रही हूँ? 9,000. Thank you for correcting me. Done? Yes, ma'am. चलो,
तो जाके एंट्री में लिख देते हैं अभी कॉल सिनेरियोस। यहाँ पर 9000 और ऊपर बैलेंसिंग फिगर शेयर अलॉटमेंट में कितना था, हाउ मच वाज ड्यू, 1 लाख वाज ड्यू, ठीक है। लेकिन 1 लाख में से ऑलरेडी हमको कितना मिल चुका है, नो 3,50,000 was due. Out of this 3,50,000, this was due. Out of this 3,50,000, how much we have already received? 1,25,000 is already being received. ठीक है। So यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 3,50,000 minus 1,25,000 is 2,25,000. 2,25,000 और उसमें से 9,000 नहीं मिला, ठीक है। So बैंक में जो अमाउंट चला जाएगा that is 2,16,000. CBSE students will write 2,16,000 here as well and they will skip writing calls in arrears. ठीक है, हमने सारी कॉल्स बुला लिया, सारा काम हो गया। अब इसके शेयर्स जो है वो हमें क्या करने, फॉरफीट करने एंड री इश्यू करने। हैव यू ऑल नोटेड टिल हियर? Yes, ma'am. चलो, so let us do the forfeiture entry. So first we'll pass the entry and then do the calculation. Share capital account will be debited, and since he hasn't paid security premium reserve, so security premium reserve will also be debited to share forfeiture account and to calls in arrears. Securities CBSE student calls in arrears की जगह लिखेंगे share allotment, रेड वाला CBSE को ही लिखना है सिर्फ, and share first and final call. Now again important thing we have to pay attention here that he has paid how much will go to share forfeiture. He has paid on the number of shares applied. कितना 25,000 he had paid. ठीक है? Is this clear to all of us? क्योंकि इसके जो number of shares applied थे वो 500 थे। हम लोग 400 multiplied by 50 नहीं कर सकते। We have to multiply 500 multiplied by 50. तो this amount तो table से हम directly ले लेंगे. So he had paid 25,000 rupees. ठीक है, 25,000 rupees share forfeiture में जाएगा। उसके जो shares थे कितने थे, 400 shares थे। यहाँ लिख देती हूँ बाजू में मैं, 500 multiplied by 50. His shares were 400. 400 multiplied by each share was of 100 rupees face value. है ना, face value 100 rupees ही है ना इस क्वेश्चन में, या 100 rupees का। ठीक है, तो 40,000 यहाँ चला जाएगा। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं दिया है, so this will be 400 multiplied by 10. 10 rupees का सिक्योरिटी प्रीमियम था, ये हो गया 4,000. एंड कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में क्या नहीं दिया, देखो दोनों जगह का कॉल्स इन अरियर्स ऐड कर लेते। एक तो 10,000 ये वाला कॉल्स इन अरियर्स और ये वाला कॉल्स इन अरियर्स 9,000, सो टोटल हो गया 19,000 का कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो ये 19,000 रुपीज हम यहाँ लिखेंगे। और आप बच्चे CBSE वाले इसको ऐसे लिखोगे, आप शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखोगे 9,000 एंड फाइनल कॉल के सामने लिखोगे 10,000। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। कैसे आया कौन सा बेटा? मैम 10,000 10,000 25 into 400. Which one are you asking? 400 share first and final call account. शेयर फॉरफीचर ये वाला? मैम share first and final call account. ये 10,000? हाँ 25 4 ना, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 25 ऐसे आया। यस मैम, है ना? यस मैम। ये मैंने यहाँ से लिया ना पीछे से, ये रहा, ये देखो, इसीलिए नहीं लिखा था इसका।
now we'll pass रीइश्यू का एंट्री. ठीक है, ऑल दी शेयर्स आर रीइश्यूड. किसको रीइश्यू किया? 105 पर शेयर. गुड क्वेश्चन, पहली बार आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर एंट्री पास कर रही हूँ मैं. बैंक अकाउंट डेबिट. अभी क्या होगा? शेयर फॉर फीचर विल नॉट बी यूज्ड ओनली. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. शेयर कैपिटल तो 100 रुपीज से क्रेडिट हो सकता है और 105 पे आपने शेयर्स को रीइश्यू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया. यहाँ पर कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाइड बाय 105. यहाँ आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है, all these figures you will write down. So एक मिनट. $42,000, 40,000 एंड 2,000. अब क्या हुआ? शेयर फॉर फीचर तो यूज ही नहीं किया, तो जितना भी शेयर फॉर फीचर का बैलेंस था, ये रहा शेयर फॉर फीचर का बैलेंस, सारा ही बैलेंस कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज नॉट यूज सिंस द शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट. तो एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू capital reserve. $105. Oh, sorry. What I'm writing? Just जो figure लिखा हुआ था वहाँ पे 25,000 and 25,000. ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर फटाफट हम लोग बैलेंस शीट भी खत्म करते हैं. बैलेंस शीट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत है, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट इज फॉलोड. हर क्वेश्चन के साथ बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयर फॉर फीचर की एंट्रीज करना, रीइश्यू की एंट्रीज करना, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान देना. दिस नोटिंग इज डन. यस, Yes, ma'am. चलो, going to the next one, that is balance sheet. 31st March, whatever is the date. So first equity and liability. उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1. बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. टू. फिर सेकेंड है एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. नोट नंबर 3. ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, नोट्स टू अकाउंट्स. वहां पे कुछ रहेगा तो जब हम नोट करेंगे बाद में वहां अमाउंट, तब देख लेना. सबसे पहले है शेयर कैपिटल. Is there any information regarding the authorized capital? No information. So authorized capital को तो ऐसे ही खाली छोड़ देना है. Then यहाँ पर भी क्योंकि सारे ही शेयर्स इश्यू हो गए, इसीलिए issued, subscribed and fully paid up.
share capital will be 10,000 shares at the rate of rupees 100 per share, है ना? तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस। दूसरा नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक तो कैपिटल रिजर्व डाल देते हैं जो अभी अभी हमने ट्रांसफर किया, कितना अमाउंट था? ये 25,000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देती हूँ, आप लोग फिर टोटल करेंगे अपने आप से। इट विल बी 98,000। कैसे 98,000 आया, चलो चल के देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट किया था। कहाँ गया अलॉटमेंट की एंट्री? ये रहा 1 लाख रुपीस। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग? फिर उसके बाद हमने इसको क्रेडिट किया कितने अमाउंट से? 4,000। सो 1 लाख माइनस 4,000 कितना हो गया? 96। फिर एक बार उसको फिर से क्रेडिट किया तो 96 प्लस 2 कितना हो गया? 98 हो गया। ठीक है, वही 98,000 यहाँ पर मैंने लिखा है। सो ये 98 प्लस 25 हैज बिकम 1,23,000। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। चलो यहाँ लिख देते हैं कितना था? 10 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल था और यहाँ पर है 1,23,000। सो टोटल हो गया इधर का 11,23,000। कैश का भी उतना ही टोटल आएगा, बट आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं नोट नंबर 3, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, सो बैंक के अंदर जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 11,23,000। कैसे आएगा 11,23,000? देखो, सारी एंट्रीज में जहां जहां पर बैंक है उन सबको ऐड कर लेना। ठीक है, ये देखिए 7,50,000 सबसे पहले यहाँ पर है, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से करके ग्रीन से कर देते। 7,50,000 यहाँ पर बैंक की एंट्री आई, फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक की एंट्री आई 7,50,000 माइनस 1,25,000, क्योंकि क्रेडिट में है इसीलिए माइनस करोगे। बैंक जितनी भी बार डेबिट होएगा उसको प्लस करना है, जितनी बार क्रेडिट हुआ उसको माइनस करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे गए, ये देखो ये रहा बैंक ये डेबिट हुआ है, प्लस करना है 2,16,000 रुपीज। ठीक है, फिर एक बार और यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ, फिर से प्लस करोगे 2,40,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं आई। चलो फिर आगे चलो, यहाँ पर भी बैंक डेबिट हुआ कितने अमाउंट से? 42,000 से। सो आगे 11,23,000 रुपीज। ठीक है, ये करके देखना है आपको, तभी लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना कि यहाँ पर इतना आया है तो उधर भी उतना ही अमाउंट आया होगा। 11,23,000 रुपीज और ये टैली हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, देखो टाइम जरूर लगता है, लेकिन कुछ भी ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। हम बैलेंस शीट थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, बैलेंस शीट में थोड़ा सा आपको यू विल हैव टू प्रैक्टिस लिटिल मोर।